वाली वाद वादऊ रात करब रही सो सारा या सचो दड़ी चई हम दगी करे पाण करी जोड़ जोड़ जान काबिल एहतराम सर जुल्फकार अली खोसो साहब सुपरवाइजर रिसर्च प्रोजेक्ट साहिब जुल्फकार अली जा असी शुक्रगुजार आयो तो तमाम बिजीएस्ट शेड्यूल में टाइम कढी असांजे स्कूल में पूरो पूरो टाइम ॾिननि ऐं he is a big name in nursing in today nursing of Sindh जिनमें को शक कोन्हे त असांखे ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे त साईं जे एक्सपीरियंस को असांजे स्कूल में इंशाअल्लाह ताला वधि खां वधि फ़ाइदो वरितो हूंदो। उन खां बाद शुक्र अदा करण थो चाहे वेलकम कया थो सर ज़करिया जुड़ेजे साहब के he is an external jury for today project research इन के विताये दिल सां वेलकम चवां थो। Before starting my presentation, I want to ask question from third year students. How many among you know about telemedicine? Please raise your hands. Please. No matter, I will explain my research project. Next, please. Today's research project presentations outline is introduction, objective and purpose, rationale, hypothesis, literature review, research methodology, result, discussion, conclusion, recommendation, and in the last references. Next. Introduction. Now, telemedicine. Telemedicine is a technology through which we get good knowledge of telemedicine. 45% of the participants agreed to telemedicine to be part of medical education. To telemedicine to be included in BS nursing syllabus. Another survey was conducted in Teaching Hospital of India, where 120 sample size was taken. The result of that study was 41 cross-sectional study at Liaquat University Hospital, Hyderabad. Inclusion criteria, I said, was contemporary and young staff nurses at Liaquat University Hospital, Hyderabad. Exclusion criteria was old nurses who at Liaquat University Hospital, Hyderabad, and staff nurses from night shift LUH, Hyderabad. Sampling technique I used is non-probability purposive sampling method is used. Population was 135. Among using Microsoft Rorschach, I set my sample size 100. Data collection instruments. Demographic questionnaire. A self-generated questionnaire consisted of knowledge about telemedicine and practice or skills of telemedicine. Ethical consideration was taken from respondents, was distribution of questionnaires and consent forms among the participants. Data analysis. Data was analyzed by MS Excel 2010. Statistical test. I used statistical test, descriptive statistical test, percentage, frequency, etc. And my study was quantitative study. The results of my research project presentation are, this is the main portion of my research project. In my research project, the participants who took part in my research study were 36% of male and 64% of female. And the result was 44% of the participants heard about telemedicine, 48% of the participants correctly defined telemedicine. No any training and practice was observed about telemedicine.
but there was some level of skills among nurses. Nurses towards telemedicine. So my hypothesis was the inadequate knowledge of telemedicine among nurses. In the last, I have concluded that nurses had inadequate knowledge of telemedicine. So my null hypothesis is not rejected. This point is to be noted here, that my null hypothesis is not rejected. It means my study suggests that there is a gap or there is a need for study for future research. Use of digital devices to nurses and inclusion of telemedicine in BSN syllabus will be recommended for the telemedicine use in hospital. That was all about my presentation. I have chosen non-probability purpose sampling because I have chosen the nurses who are the I have added like young and the nurses from morning and evening shifts, and I have excluded the night shift nurses. So that's why I have included purpose sampling. In purpose sampling, we set criteria like this. I have chosen in morning and night or evening shifts nurses, and excluded the night shifts nurses and elevation. This is the definition of purposive sampling. So if it is true that you have chosen those peoples that is intentionally helping you in your hypothesis, Please repeat this. मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो पर्पसिव सैम्पलिंग की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि भाई रिसर्चर वो लोग चूज करें जो कि उनके जो हाइपोथेसिस है उसको प्रूव करने में आसानी पैदा करें. ठीक है, तो पर्पसिव सैम्पलिंग हम इससे यूज करते हैं. तो क्या आपका भी पर्पस यही था कि पर्पसिव सैम्पलिंग आप इसी वजह से यूज करो ताकि वो आपकी जो हाइपोथेसिस है उसमें हेल्प करें? मेरा जो पर्पस था कि मैंने जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट की जो नर्सिंग को चूज किया था और जो नाइट जो शिफ्ट की जो नर्सिंग थी उनको मैंने एक्सक्लूड किया था. तो दैट्स व्हाई आई हैव एडेड पर्पस. So you can run a sample from 135 nurses. By using Microsoft and sample size formula. I use RAW software. I put the population and the result was calculated and it's In your in the rows of what you have put in to calculate these, what is your confidence interval, what is your p level, what is your criteria to choose 100 nurses? sir, confidence level was about 95%, which is constant, and my p value was less than 0.05. No, it's 95% is not your constant. You can choose 90%, you can choose 99%. So it's not 95 that the constant value that we have to choose in this. Among nurses under the clinical workload at Liaquat University Hospital, LUH, Tertiary Care, Hyderabad, Sindh. First of all, you have to understand the topic. What was the topic? मेरा जो स्टडी का टॉपिक था वो क्या था, ठीक है. So evaluating the magnitudes of impaired sleeping pattern among nurses under clinical workload at Liaquat University Hospital, LUH, Tertiary Care, Hyderabad. ठीक है, आगे चलें. सो मेरी जो रिसर्च प्रोजेक्ट की जो प्रेजेंटेशन है उसको मैंने आउटलाइन किया है इन टॉपिक्स में. सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन जो है वो बताऊंगा, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्पस, रैशनल ऑफ द स्टडी, हाइपोथेसिस, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथडोलॉजी जो है रिसर्च, उसके बाद जो है रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन एंड द लास्ट रेफरेंसेस. किसी को पता है वर्कलोड क्या है? हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड वर्कलोड? क्या आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वर्कलोड? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नर्सेज की क्लिनिकल वर्कलोड. तो क्लिनिकल वर्कलोड से क्या मुराद है?
Yes, please. वर्कलोड ठीक कौन कर सकते हैं, डबल लोड काम हो जाता है। जैसे हम जैसे विचार रेडी जाते हैं, वार्ड में सीनियर फिट जाता है, सारा कॉलेज रेडी किया जाता है, पूरा वार्ड संभालना, वाइट इसके जो भी चीज़ें हैं वार्ड को कवर करना, उसको हम वर्क कर सकते हैं। यस, सो बेसिकली मेरा जो रिसर्च का जो टॉपिक है उसमें भी यही था कि मतलब जो जो वर्कलोड है ज़्यादा है नर्सेज के ऊपर, ठीक है, उस वर्कलोड की वजह से क्या जो नर्सेज हैं उनका जो स्लीप पैटर्न है उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। सो मैंने ये चीज़ जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे है स्लीप। सबसे पहले कि स्लीप जो है वो क्या है। स्लीप जो है एक अहम एस्पेक्ट है लाइफ का। अगर स्लीप आपकी डिस्टर्ब होगी तो बाकी सारी चीज़ें भी क्या होंगी, डिस्टर्ब, ठीक है। हेल्थ के एडवांस जैसे कि आपकी क्या होती हैं इसमें शो करूँगा, ठीक है। गोल क्या था मेरा, जनरेट एविडेंस बेस्ड इंसाइट्स फॉर हेल्थ केयर लीडर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। मतलब कि मेरा जो एक एविडेंस बेस्ड जो है रिजल्ट बनाने का मेरा मकसद था, ठीक है। आउटकम डेवलप रिकमेंडेशंस टू इम्प्रूव नर्स वेलबींग एंड परफॉर्मेंस इन पब्लिक टर्शरी केयर। जो नर्सेज अगर उनकी हेल्थ सही होगी तो पेशेंट की जो है हेल्थ वो भी तभी सही हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। तो इसके लिए ये स्टडी जरूरी थी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी to examine the link between clinical workload and sleep disturbance in the LUH nurses। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया कि मैं जो है ये लिंक जो है फाइंड करने की कोशिश की, क्या जो क्लिनिकल वर्कलोड है उसका और जो नर्सेज का जो स्लीप पैटर्न है उसके बीच में कोई रिलेशन है भी या नहीं है, ठीक है। रेशन ऑफ द स्टडी नर्सेज पे स्टडी करने का मेरा मकसद क्या था, ये स्टडी जो है करना इतनी ज़रूरी क्यों है, ठीक है। तो नर्सेज प्ले वाइटल रोल, क्योंकि नर्सेज जो है वो बैकबोन होती है हॉस्पिटल साइड के अंदर। तो उनका जो हेल्थ है वो इम्पोर्टेंट है, उनका जो स्लीप पैटर्न है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए ठीक है। चैलेंजिंग वर्क कंडीशंस, ठीक है, इसकी वजह से स्लीप इम्पेयरमेंट, लैक ऑफ लोकल रिसर्च जो है इसकी वजह से, ठीक है। दिस स्टडी fills a gap by exploring sleep disturbance and workload factors among LUH nurses। तो LUH nurses जो है उनके ऊपर ये स्टडी की गई, तो वहाँ पे जो है उनका जो स्लीप पैटर्न वगैरह है उसके हिसाब से। फाइंडिंग एम टू गाइड एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स इन इम्प्रूविंग नर्स वेलबींग एंड केयर क्वालिटी। तो इसमें जो है जो पॉलिसी मेकर्स है उनके लिए थोड़ी सी आसानी के लिए कि भाई जो है पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज लाएं, उससे क्या होगी नर्सेज वगैरह जो है उनकी हेल्थ जो है वो सही हो, ताकि अगर उनकी हेल्थ सही होगी तो वो पेशेंट्स को भी जो है सही हेल्थ प्रोवाइड कर सकेंगे। क्या होता है हाइपोथेसिस, क्या होता है कि जब भी आप रिसर्च करने जाते हैं उससे पहले आप एक टेंटेटिव स्टेटमेंट देते हैं कि भाई जो मेरे मुताबिक जो है तो वेरिएबल्स आप सेट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद जो उनके बीच में रिलेशन। तो अगर जो फर्स्ट है नल हाइपोथेसिस में ये होता है कि भाई देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में जो है कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो उसको आप नल हाइपोथेसिस कहते हैं। अल्टरनेट मतलब कि जो वेरिएबल्स आपने बनाए हैं स्टडी के उसके बीच में जो है रिलेशनशिप है। So मेरा null hypothesis था वो था there is no significant relationship between clinical workload and impaired sleeping patterns among nurses at the LUH। Alternate hypothesis जो है there is a significant relationship between clinical workload and impaired sleeping patterns among nurses at LUH। उसके बाद है लिटरेचर रिव्यू। व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू? लिटरेचर रिव्यू का मतलब है कि आप क्या करते हैं स्टडी से पहले जितना भी पास्ट जो भी मटेरियल है, जो भी स्टडी पहले की गई है थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पे भी, तो आप उसको क्या करते हैं रीड आउट करते हैं, सही है। फिर वहाँ से देखते हैं कि रिजल्ट्स में उनको क्या मिला, फिर आप जो है अपनी सेटिंग में स्टडी करते हैं। तो मुझे जो है लिटरेचर रिव्यू में क्या मिला मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। नर्सिंग इज डिमांडिंग इन्वॉल्विंग लॉन्ग आवर्स, नाइट शिफ्ट एंड इमोशनल स्टेट्स। ये जो है लिटरेचर रिव्यू से मुझे एविडेंस मिले कि भाई जो है नर्सिंग में क्या होता है कि जो लॉन्ग आवर्स की ड्यूटी होती है, नाइट के शिफ्ट्स होते हैं, इससे इमोशनल स्ट्रेस जो है वो भी होता है, ठीक है। फैक्टर्स दैट डिस्टर्ब स्लीप, सो दीज आर द फैक्टर्स जो क्या करते हैं स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं। ग्लोबल स्टडीज शो हाई क्लिनिकल वर्कलोड लीड्स टू पुअर स्लीप क्वालिटी। जो ग्लोबल स्टडीज़ है उन्होंने ये शो किया, ठीक है। वहाँ से मुझे ये पता चला कि अगर वर्कलोड ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि जो नर्सेज हैं उनकी जो स्लीप क्वालिटी है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उससे क्या हो सकता है, इंसोम्निया भी हो सकता है, फटीग भी हो सकता है, बर्नआउट, तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। शिफ्ट वर्क डिस्टर्बेंस सर्कैडियन रिदम्स। अच्छा, अब से शिफ्ट से क्या है, स्पेशली विद पुअर शेड्यूलिंग प्रैक्टिसेस इन पब्लिक हॉस्पिटल्स, matrices these gaps aiming to guide health policies through evidence from LUH। आगे चलें। रिसर्च मेथडोलॉजी अप्रोच या डिज़ाइन अगर देखें तो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी टू असेस स्लीप पैटर्न एंड वर्कलोड। उसके बाद जो है सेटिंग लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल LUH हैदराबाद सिंध। पॉपुलेशन एंड सैंपल साइज जो है रजिस्टर्ड क्लिनिकल जो है नर्सेज एट LUH
सैम्पल साइज जो है मैंने 100 का लिया था। पर्पस जो है सैम्पलिंग अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स जो है वो मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो है की। इसमें वो वर्किंग इन द क्लिनिकल रोल्स, ठीक है, और जो है कंसल्टिंग। एक्सक्लूडेड कौन सी जो नर्सेज है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है? नर्सेज ऑन लीव, एडमिन ड्यूटी और विद डायग्नोज स्लीप और मेंटल डिसऑर्डर। सो दीज नर्सेज आर नॉट इंक्लूडेड इन माय study because they are already suffering from the mental disorder or the sleep disorders, so they cannot be included in the study. डेटा कलेक्शन टूल जो है मेरा क्वेश्चनर वो मैंने डेवलप किया था, सही है। तो उसमें क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर विद डेमोग्राफिक्स जो है उसमें सेक्शंस था, उसमें जो है वर्कलोड असेसमेंट जो है स्केल वो था, उसमें जो है पिट्सबर्ग स्लीप क्वालिटी इंडेक्स, दीज आर द क्वेश्चंस। पिट्सबर्ग स्लीप क्वालिटी इंडेक्स में क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चनर होता है, वो आप देते हैं। उससे क्या होता है कि जब वो रेस्पॉन्स आपको वहाँ से मिलता है तो आप उस बंदे की जो है स्लीप क्वालिटी उसको आप असेस कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। उसके बाद है रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसमें आगे है टूल वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो टूल जो है वो कितना रिलायबल था, कितना जो है उसकी वैलिडिटी थी, उसको देखते हैं। PSQI वैलिडेटेड जो है क्रॉन्स अल्फा जो है 0.83, ठीक है। वर्कलोड टूल रिव्यूड बाय द एक्सपर्ट्स, पायलट स्टडी जो है ऑन 10 नर्सेस, इस तरह से, ठीक है। IRB अप्रूवल, इन्फॉर्म कंसेंट, डेटा गैदर ड्यूरिंग द ब्रेक्स, सिक्योर्ड जो है स्टोरेज। तो इसको मैं जो आपको ड्राफ्ट में जो है शो कर रहा हूँ रिजल्ट्स। आगे चलें, ठीक है। जेंडर, अच्छा मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो सैंपल साइज है उसमें मैंने जेंडर ब्यास को अवॉइड करने के लिए जो 50% मेल और 50% जो है फीमेल जो रेशियो है मैंने वो लिया, सही है। उसके बाद जो है डिपार्टमेंट जो मैंने नर्सेज से डेटा कलेक्ट की वो कौन कौन से डिपार्टमेंट से थी नर्सेज, दे वर फ्रॉम द 11% फ्रॉम द इमरजेंसी, ICU से 28%, जो जनरल वार्ड है वहाँ से 38% और जो अदर वार्ड से वहाँ से 23% नर्सेज थी। आगे चलें, डिजाइनेशन। अच्छा अब जो नर्सेज थी जिससे मैंने डेटा कलेक्ट की उनकी पोजीशंस जो है वो क्या थी, मतलब वो कि एज ए कौन सी पोस्ट पे सर्व कर रहे थे। स्टाफ नर्सेज जो है 75%, हेड नर्सेज 25%, जो है नर्सिंग असिस्टेंट 2% और नर्सिंग स्टूडेंट्स जो है वो 2%, इस तरह से। आगे चलें, शिफ्ट पैटर्न। अच्छा शिफ्ट पैटर्न में है जो डे नर्सेज 26% इसमें इंक्लूडेड थी, नाइट जो है वो 18%, रोटेशन जो है वो 41 और जो फिक्स है वो 15। पर्पस ऑफ सैम्पलिंग थी इस वजह से, तो यहाँ पे जो डेटा मुझे इस तरह से मिला, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे है क्लिनिकल वर्कलोड, वर्क ओवर्स पर शिफ्ट। तो यहाँ पे जो है क्लिनिकल वर्कलोड जो है वो शिफ्ट के हिसाब से वो किस तरह से, ठीक है। यहाँ पे जो 21 जो पर्सन नर्सेज थी उन्होंने ये कहा कि हम जो है रेस्पॉन्सिबल होती हैं 1 से 3 पेशेंट्स के लिए, ठीक है, हमारी जो शिफ्टिंग आवर्स होती हैं उसमें। उसके बाद जो है 20% जो नर्सेज ऐसी थी उन्होंने ये कहा कि हम जो है 4 to 6 इसके हिसाब से देखा। तो हमने ये क्वेश्चन किया कि भैया आपको जो है वर्क से रिलेटेड कोई स्ट्रेस वगैरह होता है, तो उसमें जो है रेयरली, समटाइम्स और ऑफन। तो उनका जो रेस्पॉन्स हमें इस तरह से मिला, रेयरली 30%, समटाइम्स 27% और ऑफन जो है 41%, ठीक है। उसके बाद है स्लीप क्वालिटी। स्लीप क्वालिटी में क्या है कि भाई जो नर्सेज हैं हम गेटिंग जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब उनके ऊपर जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो भी हैं, ठीक है। Majority worked in general wards 38%, in ICUs 28%, 75% were staff nurses, high clinical workload 75% जो है वो काम करती हैं 11 आवर्स से भी ज़्यादा, 55% जो है केयर फॉर मोर देन 10 पेशेंट्स, 66% रिपोर्ट फ्रीक्वेंट वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, ठीक है, 77% वर्क ओवर टाइम रेगुलरली। उसके बाद है डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, 70 जो है 3% नर्सेज। तो यहाँ पे जो स्टडी में मुझे ये पता चला कि जो LUH हॉस्पिटल है यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है और उस वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो नर्सेज हैं उनका जो स्लीप पैटर्न है वो क्या है, डिस्टर्ब है। लेक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, और जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी उनको वहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है, इनकी वजह से जो उनकी स्लीप क्वालिटी है वो क्या है, डिस्टर्ब हो रही है और उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो क्या हो रहा है, इनहांस हो रहा है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स इंक्लूड कंप्रोमाइज्ड नर्स हेल्थ, जो नर्सेज की हेल्थ है वो कंप्रोमाइज हो रही है, उनकी जो जॉब परफॉर्मेंस है वो भी जो है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड पोटेंशियल रिस्क टू पेशेंट सेफ्टी, अगर नर्सेज जो है उनकी खुद की हेल्थ सही नहीं होगी तो वो जो प्रॉपर केयर है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी, ठीक है। उसमें ये है कि रिकमेंडेशंस या फिर इंटरवेंशंस, इम्प्लीमेंट फिक्स्ड शिफ्ट शेड्यूल्स, जो नर्सेज हैं LUH में काम कर रही हैं उनकी जो शिफ्ट्स है उनको फिक्स किया जाए, मतलब जैसे कि नाइट है तो नाइट या डे या फिर इवनिंग, तो इस तरह से उनको शिफ्ट किया जाए। इंक्रीजिंग स्टाफिंग लेवल, जो स्टाफ है उनको इंक्रीज किया जाए, ठीक है।
ताकि वर्कलोड जो है वो कम हो। उसके बाद है इंट्रोड्यूस फॉर्मल स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्लीप हेल्थ प्रोग्राम्स। तो जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट और जो स्लीप जो है हेल्थ प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। उसके बाद है अर्जेंट नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन टू सपोर्ट नर्स वेलबींग एंड मेंटेन क्वालिटी केयर डिलीवरी। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको ये जो है इक़दाम लेने चाहिए ताकि जो नर्सेज है उनकी हेल्थ सही हो और जो पेशेंट्स वगैरह वहाँ पे आए उनको भी जो है प्रॉपर जो केयर वगैरह है वो प्रोवाइड हो सके। Do you know what is confounding factors in research? यस, कंफाउंडिंग फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ जो है रिसर्च क्राइटेरिया सेट करते हैं। वहाँ पे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, ठीक है। मतलब जो है हम जो सैंपल जो लेंगे वो सैंपल जो है बेसिकली उसको हम डिफाइन करते हैं, सही है। मतलब जो है किसको हम स्टडी में ऐड करेंगे, किसको हम स्टडी में ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद है कंफाउंडिंग फैक्टर्स। कंफाउंडिंग फैक्टर से ये मुराद है कि भाई दोज फैक्टर्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल ड्यूरिंग द स्टडी, आपके वो कंट्रोल में नहीं होते। सो उसको आपको क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करना होता है। तो यहाँ पे मैंने कंफाउंडिंग फैक्टर्स को रिड्यूस करने के लिए मैंने जो अपना टॉपिक है उसमें ये लिखा कि भाई एक तो मैंने कहा कि नर्सेज जो है वो LUH की सिर्फ होंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने ये कहा कि भाई जो है वो नर्सेज जो रजिस्टर्ड हैं, उसके बाद जो वो जो मोर देन 6 मंथ्स काम कर रही हैं, मैंने उनको इंक्लूड किया, ठीक है, इस तरह से। तो कंफाउंडिंग फैक्टर्स है उसको रिड्यूस करने के लिए कंफाउंडिंग फैक्टर्स होता ये है कि भाई जो रिजल्ट है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है वो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको जो है रिजल्ट्स, अगर जो आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको ट्रू साबित करना है या रिजल्ट्स को पॉजिटिव लाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। और ये रिड्यूस कैसे हो सकता है, आप अपना जो टॉपिक है उसको आप कंसाइज करें, रिसर्च एरिया उसको इस्तेमाल करके इस तरह से। ठीक है। आप मुझसे पूछते हो कि आपकी स्लीप की क्वालिटी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल आपका मैं पार्टिसिपेंट हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि जो वर्कलोड है वही मेरा फैक्टर हो। मैं कहूँ लाइट नहीं थी, मैं इसलिए नहीं सोया, प्रॉब्लम थी, घर में कोई इशू था। इसलिए आपने कहा कि भाई हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है जो उसको सपोर्ट करे, हम ऐसे ही सैंपल्स जो है वो हम लेते हैं, इसको आप पर्पस सैम्पलिंग कहते हैं। अगर मैं अपनी तरह से उसको थोड़ा सा ऐड करूँ तो पर्पस सैम्पलिंग है कि आप अपना जो रिसर्च है, अपना जो उसको मकसद जो है रिसर्च का, उसको पूरा करने के लिए आप क्या करें, जो है डेटा कलेक्ट करें, तो उसको आप जो है पर्पस सैम्पलिंग कह सकते हैं इस तरह से। तो पर्पस क्या है, बेसिकली हमारा पर्पस था वर्कलोड जो है इस तरह से फाइंड आउट करना। तो हम तो डेटा जो है वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं हैदराबाद के अंदर, जो है डिफरेंट कराची के अंदर, वहाँ से भी ले सकते थे। बट हमारे पास जो है फंडिंग वगैरह जो है उसका इशू होता है, ठीक है, रिसोर्सेज का इशू है। तो इसलिए हमने क्या करा, तो पर्पस जो है सैम्पलिंग वो अप्लाई की, इसलिए ताकि जो है हम जो रिसर्च है उसको टाइमली जो है वो पूरा कर सकें, जो ड्यूरेशन है विद इन उसके अंदर, और जो रिजल्ट्स वगैरह जो हैं वो भी उसी तरह से मतलब आज जो है। ओके, पर्पस सैम्पलिंग अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसके बाद आप कन्वीनियंट सैम्पलिंग जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। okay, next. You have selected those nurses who are working in patient care setting, and why you have selected 21% head nurses? Basically, I have not selected the 25% head nurses. Actually, जो मिला हमने वही सैंपल तकरीबन जो कलेक्ट किया इस तरह से, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम। मतलब कि कोई ये सिलेक्शन नहीं थी कि मुझे 25% जो है हेड नर्सेस सिलेक्ट करनी है इस तरह से। एडाप्टेशन, अब जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको जो है वो अडाप्ट करने में उन्हें कौन कौन से बैरियर्स हैं या कौन कौन सी उनकी परसेप्शन है जिसकी बेस पर वो इस चीज़ को आया इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। जो मेरे रिसर्च पर्सन थे वो थे व्हाट इज द लेवल ऑफ नॉलेज अमंग नर्सेस अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड द नेक्स्ट इज हाउ फ्रीक्वेंटली डू नर्सेस यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स इन प्रैक्टिस, and the third one is what are the perceived barriers to AI adaptation in nursing, and these were my research questions. लिटरेचर रिव्यू में मैंने जो देखा मैंने उसमें था कि नर्सेस नीड फॉर्मल AI एजुकेशन, ये बहुत बड़ा जो है वो गैप था जिस पर मैंने अपनी रिसर्च में भी इस पर काम किया, जिसमें नर्सेस शुड लेट AI इम्प्लीमेंटेशन एंड नर्सेस शो पॉजिटिव एटीट्यूड बट लिमिटेड ट्रेनिंग। ये चीज़ जो है वो जो मेरी रिसर्च है उसमें भी मैंने ये चीज़ देखी कि वो विलिंग है उस चीज़ को सीखने के लिए, पर हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट
उसके बाद लेक ऑफ जो टूल्स हैं, लेक ऑफ ट्रेनिंग्स हैं, उनकी वजह से वो उस चीज़ को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम जो लिमिटेड स्टडीज हैं, अगर साउथ एशिया की बात करें तो हमारे पास लोकल कॉन्टेक्स्ट में ये वो ग्लोबल था। अब ये लोकल में हमारे पास साउथ एशिया में जो है वो इतनी अभी तक जो है वो इस पर लिमिटेड जो है वो स्टडीज हैं, और इसके अलावा एम्पिरिकल डेटा टू शेप एजुकेशन एंड पॉलिसीज, इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है। जो मेरा मेन है कि मैंने कौन सी मैथडोलॉजी, डिज़ाइन, पॉपुलेशन सैंपल और डेटा कलेक्शन किस तरीके से की। तो सबसे पहले जो मेरा डिज़ाइन है वो क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव स्टडी थी, जिसमें जो मेरी पॉपुलेशन थी 183 नर्सिस इन टर्शरी केयर हॉस्पिटल मींस लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जिसमें से 120 जिन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। और डेटा कलेक्शन जो थी मेरी वो थी स्ट्रक्चर क्वेश्चनर एनालाइज यूजिंग SPSS, और ये SPSS की जितनी भी मैंने एनालाइज की थी ये भी मैंने जो है वो AI की मदद से ही की थी। अब जो मेरे क्वेश्चनर के जो सेक्शन थे, जिसमें सबसे पहला जो मेरा डेटा कलेक्शन का जो था सैम्पलिंग का था वो था कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक थी, जिसके थ्रू मैंने जो है वो अपना डेटा कलेक्ट किया था। तो सबसे पहले जो मेरा रिजल्ट थे जो मेरे क्वेश्चनर के मुताबिक सेक्शन था डेमोग्राफिक, नॉलेज ऑफ AI, प्रैक्टिस ऑफ AI, परसेप्शन एंड बैरियर्स अकॉर्डिंग टू माय स्टडी। तो जो मेरे पास डेमोग्राफिक जो रिजल्ट्स आए थे उसमें से 120 नर्सिस का जो है वो मैंने सर्वे जिन्होंने जो सर्वे दिया था उसमें जो मीन एवरेज था वो 38.3 ईयर मीन्स अराउंड 38-39। उसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन थी वो 7.7 थी, जिसमें जो है वो रेंज आ रही है 26 to 58। तो 76 जो 63% हमारे पास फीमेल थी एंड 44% जो है वो स्टडी में मेल जो है जिन्होंने पार्टिसिपेशन की थी। उसके बाद जो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो हमारे पास 2 में स्प्लिट था। मोस्टली जो हमारे पास थे उन्होंने डिप्लोमा नर्सिंग की हुई थी और कुछ ने जो है वो BSN किया हुआ था। मोस्टली वहाँ पर मुझे ना MSN के लिए जो है वो एलिजिबल जो MSN जिन्होंने किया हो ना वो मिला है, ना मुझे उससे एडवांस स्टडीज़ के लिए जो हमारी हैं ना वो मुझे वहाँ पर सैंपल मिला है। तो जिसमें हमारे पास जो BSN का मिला है मुझे वो है 53%, और जो मुझे जनरल नर्सिंग जो है डिप्लोमा का मिला है मुझे 47%, और जो फीमेल रेशो जो वहाँ पर जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें 63% फीमेल और 73% जो है वो मेल था। अगर नॉलेज ऑफ AI, half of the nurses were aware of AI and correctly defined it, but most of ट्रेनिंग या AI के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर आप जानते हैं या जाना है आपने तो उसकी सोर्स क्या थी। तो मोस्टली जितने भी हमारे पास जो सैंपल में लोगों ने पार्टिसिपेशन की थी तो मोस्टली सबका था कि सोशल मीडिया से ही उन्हें जो है इसकी इन्फॉर्मेशन मिली है। इसके मुताबिक उन्होंने कोई ऐसी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली जिससे वो इसको उन्होंने सीखा हो। तो अवेयरनेस जो है जिन्होंने AI के बारे में सुना था उनका रेशो था 47.0%, और जिन्होंने नहीं सुना था उनका था 47.0%, और जिन्होंने सुना था वो था 53.0% जो है जिन्होंने सुना था। अब सेल्फ रेटेड AI, अब उन्होंने खुद से जो है कहा कि आया जो हम कितने कॉन्फिडेंट हैं, हमें इस चीज़ को इस्तेमाल करने में गुड है, एवरेज है, पुअर नॉलेज है। तो ये उनकी ग्राफ के मुताबिक तो कुछ ने जो जिन लोगों ने सुना था उनका था गुड, एवरेज और फिर पुअर और नन। मोस्टली जो हमारे पास 2 ग्राफ्स हैं वो नन और गुड, क्योंकि हमारे पास कुछ ने सुना था और कुछ ने नहीं सुना। एवरेज और पुअर जो है वो बहुत हमारे पास लिमिटेड था, और एक्सीलेंट के लिए तो हमारे पास था ही बहुत कम, जिन्होंने एक आधे ने जिन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह रोबोटिक्स वगैरह पर और इन पर ली थी। प्रैक्टिस ऑफ AI अगर हम उसको डेली बेस पे और अपने यूज़ में क्लिनिकल प्रैक्टिस में उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, तो उसकी एनालिसिस के लिए कॉन्फिडेंस इन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमारे पास बार ग्राफ है, तो इसमें देखें वेरी कॉन्फिडेंट का जो हमारे पास ग्राफ है, उसके बाद सम
समवट कॉन्फिडेंट, नॉट कॉन्फिडेंट एंड नॉट एप्लीकेबल। तो ये चीज़ें बहुत उन पर थी कि कुछ जो है वो कह रहे थे कि हम कॉन्फिडेंट हैं पर हमें चलाना नहीं आता, हमें सुना है पर हम उस पर कॉन्फिडेंट नहीं है। हमारे पास जो AI टूल यूज था मोस्टली था कि हमने कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया। कुछ अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो वेयरेबल यानी उनकी स्मार्ट वॉच, मोनीटर्स जो हमारे पास जैसे इंक्यूबेटर्स का, और उसके बाद हमारे पास वेंटिलेटर्स के लिए जो स्मार्ट मोनीटर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं AI की मदद से, वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ वो इस्तेमाल होते हैं। 90% जो है सेड ओकेजनली एंड 41% कभी नहीं, और उसके बाद जो है अबाउट 5% जो है डिड नॉट आंसर, कि उन्होंने कोई आंसर ही नहीं दिया था। ये भी ऑप्शन था तो उन्होंने इस चीज़, तो मोस्टली जो है अवेयर थे पर जो है उन्हें ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं मिलती जिसकी वजह से वो उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पाते। एंड हेयर परसेप्शन एंड बैरियर्स, अब मोस्टली जो था कि लेक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड लेक ऑफ ट्रेनिंग, लिमिटेड टूल्स एंड मोस्टली जो हमारे पास एक था फेयर ऑफ जॉब लॉस, ये बहुत कम हमें जो है वो मिला। पर जो दूसरे वेरिएबल्स, दूसरी चीज़ें थी उस पर उन्होंने जो है वो ज़्यादा जो है उस पर आंसर किया। मोस्टली जो हमारे पास इंटरेस्टेड इन AI ट्रेनिंग, वहाँ सब ने जो है वो 100% जो है वो अपना रिस्पॉन्स किया था कि वो विलिंगली जो है वो करना चाहते थे कि हम एडवांस हों, हमें पता हो चीज़ें कैसे हो रही हैं एडवांस दुनिया में। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने वहाँ पर 100% जो है इसका मुझे रिस्पॉन्स मिला था।